بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشو، منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو۔ الحمدللہ ہم نے زبور عجم کی منتخب غزلوں کا حصہ اول مکمل کر لیا، اور اب ہم اس کتاب کے حصہ دوم کی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے، جو صرف ایک شعر پر مشتمل ہے۔ میرا یہ احساس ہے کہ انسانی عظمت کے بیان کے لحاظ سے علامہ صاحب کے کلام میں اس موضوع پر اس سے بڑا شعر میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ یہ شعر انسانی روح کی جڑ کے عظیم مقام سدرہ کے درخت سے متعارف کرواتا ہے، جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور شاخیں ساتویں آسمان میں ہیں۔ اس تعارف کو حاصل کر کے ہم سرشاری و شادمانی کی کیفیت میں اپنی اس حیثیت کو جان کر مسحور ہو سکتے ہیں جو خدا نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ اس شعر کے ذریعے علامہ صاحب نے انسان کی ذات کے منبع اور سرچشمے کے بیان میں بہت گہرا مشاہدہ کیا ہے، جس سے انسان کی عظمت کئی لاکھ گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم و جان اور روح سے ملاقات کے لیے معراج پر بلایا۔ اسی مقام پر نماز کا وہ تحفہ دیا جو مومنین کی معراج ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے کبیرہ گناہ معاف کیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں کی تہ سے نکال کر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا ارمغان بھی یہی ملا، اور ہماری ارواح کا رشتہ بھی اسی سدرۃ المنتہا سے ہے۔ جناب، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ اگر آپ کلام اقبال کے حقیقی قدردان ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ سے کسی بھی شعر کی تشریح نہ چھوٹے۔ فیس بک پر شیئرنگ سے آپ اس کلام کا ابلاغ عام کر سکتے ہیں۔ شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشو، منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو۔ تو سدرہ کے درخت کی شاخ ہے، دنیا کا کوڑا کرکٹ مت بن، اور اگر اس کو تو نہیں مانتا تو اپنے آپ کا منکر مت بن۔ علامہ صاحب نے اس شعر میں انسان کو سدرہ کے درخت کی ایک شاخ کہا ہے۔ روایات کے مطابق اس درخت کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے جس کا سمجھنا مشکل ہے، اسی لیے دوسرے مصرے میں کہا کہ اگر تم اس بات کو من و ان نہیں مانتے ہو تو خود کو ہی مان لو، یعنی اپنے آپ پر غور کر لو اور اپنی حقیقت کی جتنی بھی ممکن ہو پہچان حاصل کر لو، اور اپنے آپ کو دنیا کا کوڑا مت بناؤ۔ یہ جو کہا گیا کہ تم سدرہ کے درخت کی ایک شاخ ہو، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے سدرہ کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں سدرہ یا سدر کا نام 4 مرتبہ لیا گیا ہے۔ ایک بار سورۃ السبا، 2 مرتبہ سورۃ النجم اور 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ میں۔ ان چاروں حوالوں میں سے ایک حوالے یعنی سورۃ السبا میں بیان شدہ درخت کا تعلق اس زمین سے ہے، 2 درختوں کا تعلق آسمانوں کی سرحد سے ہے، جبکہ ایک شجر کا ذکر جنت کے نباتات کے بیان میں آیا ہے۔ اردو اور انگریزی کے مفسرین قرآن نے سدرہ کو زیادہ تر بیری کا درخت بتایا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے سورۃ النجم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بیری کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہ کیا جائے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ جو اعمال وغیرہ زمین سے چڑھتے ہیں اور جو احکامات وغیرہ آسمان سے اترتے ہیں، ان سب کا منتہا وہی مقام ہے۔
मजमुआ रवायात से यूं समझ में आता है कि इस शजर की जड़ छठे आसमान में और फैलाव सातवें आसमान में होगा। वल्लाहु आलम। मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी ने तहरीर फरमाया है कि सिदरतुल मुंतहा इस आलम और उस आलम के दरमियान एक नुक्ता इत्तसाल यानी मीटिंग पॉइंट है, जहाँ से मलाइका को आलम बाला से अहकामात मिलते हैं जिन्हें वो ज़मीन पर लाते हैं, और दूसरे फरिश्ते ज़मीन में किए गए आमाल को वहाँ तक पहुँचाते हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मौलाना के ख्याल में आसमानों के ऊपर दरख्त और बेरी के दरख्त को तस्लीम करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के नबातात समेत न जाने कितनी चीज़ों का जन्नत में होना साबित है। अलबत्ता जन्नत और आसमान की हर नेमत दुनिया की नेमतों से मुशाबे होने के बावजूद बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। सूरतुल वाक़िया की तफसीर बयान करते हुए मौलाना लिखते हैं कि बाज़ मुफस्सरीन की राय में सिद्र से मुराद बेरी नहीं है बल्कि एक और उम्दा दरख्त है। तफसीर हक्कानी में सिद्र की बाबत तहरीर किया गया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी मलकूती शक्ल में दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, और सिदरा जो जन्नतुल मावा में है वो कोई दुनिया का दरख्त नहीं है बल्कि सूफिया कराम के नज़दीक सिद्र से इबारत रूह आज़म है कि जिसके ऊपर कोई तयन और कोई मर्तबा नहीं है। मौलाना हक्कानी के नज़रिए में जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुनिया में एक दरख्त पर तजल्ली हुई थी, इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल मावा में उस दरख्त सिद्र पर तजल्ली हुई जो तमाम अरवाह की जड़ है। लुगातुल कुरान में सिदरतुल मुंतहा को इंसानी फहम व इदराक की आखिरी सरहद पर एक दरख्त कहा गया है, जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फयूज़ रब्बानी और इनामात समदानी से मखसूस फरमाया गया। उसी मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत के तहाइफ मिले और उन उम्मतियों के गुनाह कबीरा की माफ़ी का ऐलान हुआ जो शिरक से बचेंगे। कुरानी आयत की रोशनी में सिद्र की हकीकत और कैफियत समझने के लिए ज़रूरी है कि उन इरशादात के मकासिद और मफहूम को जहन में रखा जाए। मसलन ये बात बहुत वाज़ेह है कि कुरान के चारों हवाले सिद्र के दरख्त के हैं, इनमें से एक भी इशारा सिद्र के फल की जानिब नहीं है। मज़ीद बरा किसी भी आयत में सिद्र का जिक्र दूसरे फलदार पौधों के साथ नहीं हुआ है, यानी खजूर, अंगूर, जैतून, अनार और इंजीर का तज़किरा तो एक दूसरे के साथ किया गया है, लेकिन इनमें से किसी का जिक्र सिद्र के साथ नहीं मिलता। गोया सिद्र के दरख्त की अहमियत और उसकी शान व शौकत का बयान हुआ है, लेकिन इसके समर की खूबी या नेमत की बात नहीं की गई है। सूरतुल नज्म और सूरतुल वाक़िया में सिद्र का जिक्र करके हसीन, दिलकश और हैरत में डालने वाले मनाजिर का एहसास दिलाया गया है, जबकि सूरतुस सबा में सिद्र को इन 3 अक़साम के मजबूत दरख्तों असल, खम्त, सिद्र में से एक बताया गया है जो सैलाब की जद में आकर भी अपनी जड़ों पर खड़े रहे, हालांकि बाकी सारे बागात तहस नहस हो गए। लिहाजा ये आम बेरी का दरख्त नहीं हो सकता। मजीद बरा बेरी के दरख्त की लकड़ी ईंधन के काम तो आती है, लेकिन इमारत या फर्नीचर बनाने के लिए मौजू नहीं समझी जाती। बेरी का फल खुश जायका तो होता है, लेकिन इसका शुमार बेहतरीन फलों में नहीं किया जाता। लिहाजा तिजारती तौर पर बेरी के बागात खाल खाल ही मिलते हैं। अलबत्ता इन दरख्तों को कांटों की वजह से बाड़ के तौर पर तो लगाया जाता है, लेकिन किसी इलाके को खुश मंजर बनाने के लिए
इसका लगाना मुनासिब नहीं समझा जाता। बेरी के दरख्त अपने तनों और जड़ों की बिना पर बहुत मजबूत दरख्त भी नहीं समझे जाते। इनकी शाखें और पत्तियां सायादार भी नहीं कहलाई जा सकती। अब अगर बेरी की सारी खुसूसियात और कैफियत को मद्देनजर रखा जाए तो इस बात के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं कि जिस दरख्त का हवाला कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा और जन्नत की मंजर कशी करते हुए दिया गया है, नीज सूरतुस सबा में सैलाब से बच जाने वाला दरख्त कहा गया है, वो बेर हो सकता है। ये बात भी जहन नशीं रखनी चाहिए कि सिद्र की बाबत बहुत वाज़े अहादीस भी मौजूद हैं जिनके पेश नज़र सिद्र को एक शानदार और पुरवकार दरख्त बताया गया है। इसे काटने से मना किया गया है। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि सिदरा यकीनन कोई अहम और नायाब दरख्त था, इसलिए कुरान और हदीस दोनों में उसके तज़किरे मानी खेज और बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इन हक़ाइक़ की रोशनी में उन मुफस्सिरीन कुरान की राय और नज़रिए पर गौर करना होगा जिन्होंने फरमाया कि सिदरा बेरी की बजाय कोई दूसरा शानदार और उम्दा दरख्त हो सकता है। अब सवाल यह है कि सिदरा का मफहूम अगर बेरी नहीं है तो फिर वो कौन सा दरख्त है? डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी की राय में सिद्र का इशारा शाम व लबनान के उस दरख्त की तरफ है जिसको अरबी ज़ुबान में अर्जुल रब, अर्जुल बनान या शजरतुल्लाह कहते हैं, और जो ज़माना कदीम में सिद्र के हम वज़न नामों से रोम और यूनान में जाना जाता था, यानी सिद्रास, सिद्रस, किद्रास वगैरह। लबनान का ये दरख्त अपने जाहो जलाल, कद्दो कामत और खूबसूरती नीज खुशबूदार लकड़ी की बिना पर अरब ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का हसीन तरीन दरख्त समझा जाता था। इसका जिक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों ने अपने इरशादात में बड़े अदब के साथ किया है और इसकी अज़मत बयान फरमाई है। मुक़द्दस बाइबल में इसका तज़किरा अर्ज़ के नाम से बारहा हुआ है। एक आयत में इरशाद होता है, द ट्रीज ऑफ द लॉर्ड, द सीड्रस ऑफ लेबनन विच ही हैथ प्लांटेड। सर विलियम स्मिथ की तहकीक के मुताबिक बाइबल में मज़कूर अर्ज़ का तर्जमा यूरोप की कदीम ज़बानों में सिद्र के नाम से किया गया है। यूरोप की इन कदीम ज़बानों यूनानी और रोमी का असर इस्लाम से कबल लबनान, शाम और फ़िलिस्तीन के ज़्यादातर इलाकों में पाया जाता था। इसीलिए वहाँ की एक पुरानी आबादी जहाँ सिद्र के दरख्त बहुत पाए जाते थे उसका नाम सिदरान पड़ गया है। ये दरख्त आम तौर से 70 मीटर या 200 फुट तक बुलंद होता है। इसके तने का कुतर 8 फीट होता है। इसकी गोलाई 40 फुट तक होती है। इसकी गहरी सब्ज पत्तियों की शाखें नीचे से ऊपर तक एक ही अंदाज से लटकी हुई कोन की शक्ल जैसी होती हैं और धूप में एक खास चमक पैदा करती हैं। मोल्डंके ने लिखा है कि इस दरख्त या इसके जंगलात के करीब खड़े होकर इंसान वर्ताए हैरत में खो जाता है और इसके जाहो जलाल का रोब हमेशा याद रहता है। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहों और महल्लात में इसी दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल की थी। सिदरा की लकड़ी में इतनी खुशबू और चमक होती है कि इससे बनी इबादत गाहें नहायत मुअत्तर और साफ सुथरी रहती हैं और तकरीबन 400 साल तक उन पर मौसम का कोई असर नहीं होता। कहा जाता है कि फिरऔनी दौर में लबनान और शाम के सिदरा के जंगलात से इतनी ज़्यादा लकड़ी काट कर मिस्र ले जाई गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से कबल ही इसकी कमियाबी महसूस की जाने लगी। लिहाजा सिदरा के दरख्तों का काटना एक नामुनासिब अमल तस्वर किया जाने लगा। अब अगर सिदरा को अर्जुल बनान तस्लीम कर लिया जाए तो कुरानी इरशादात में सिदरा का मफहूम और मतलब और वाज़ेह हो जाता है। छठे और सातवें आसमान पर
सिदरतुल मुंतहा से मुराद आखिरी हद पर ऐसे दरख्त की हो जाती है जो अरब के इलाके का सबसे बुलंद, आलीशान, जाहो जलाल वाला, मजबूत, खुशनुमा, खुशबूदार और हैरत में डालने वाला दरख्त था, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल मबूस पैगंबरों के इरशादात का भी एक मौजू था। इसी दरख्त को कुरान करीम में जन्नत की मंजर कशी करते हुए सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 28 में सिदरा मखदूद यानी बगैर कांटे वाला सिदरा दरख्त कहकर वाज़िया किया गया है। सिदरा का अल-अर्ज़, अर्ज़ुल रब, शजरतुल्लाह, अर्ज़ुल बनान होना हदीस से भी साबित है। मसलन अबू दाऊद की हदीस में जिस सिदरा को काटने से मना फरमाया गया और काटने वाले को जहन्नुम से डराया गया है, वह यकीनन बेरी का दरख्त नहीं हो सकता। वो सिदरा बमाने अल-अर्ज़ ही था, और अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्ती से अल-अर्ज़ को काटने से मना ना फरमाते तो यकीनन अरब से ये हसीन दरख्त आज ख़त्म हो जाता और इस सरजमीन पर इस दरख्त का कोई वजूद ही ना होता। सिदरतुल मुंतहा के ज़िम्न में फरमाया गया है कि आसमान पर जो सिदरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था वो एक नहायत बुलंद व बाला दरख्त था, जिसके पत्ते या शाखें हाथी के कानों की मानिंद थीं और फल पानी के मटकों की तरह थे। जिस शख्स ने भी सिदरा का दरख्त और इसका फल देखा हो या उसकी तस्वीर नज़र से गुजरी हो, वो मज़कूरा हदीस में दी गई तशबीह की खूबी से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सिदरा की पत्तियों से घनी और लंबी शाखें नीचे की जानब लटकती हुई वाकई हाथी के कान का तस्वर पेश करती हैं, और इसके फल की वज़ाकता हूबहू पानी के मटकों जैसी होती है। वाज़ेह रहे कि सिदरा से मुतल्लिक हदीस की रोशनी में बेरी का कोई तस्वर जहन में नहीं लाया जा सकता। बेरी के काटने की मुमानियत का भी सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि बेरी की लकड़ी चौखट और दरवाजे बनाने के काम में नहीं लाई जाती, और ना ही बेरी का दरख्त बुलंद कहलाया जा सकता है। जबकि सारी बातें अल-अर्ज़ पर ही सादिक आती हैं। नबाताती तारीख, पौधों की कीमियावी खुसूसियात, कुरानी इरशादात और अहादीस की रोशनी में डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी ने यह नज़रिया पेश किया है कि सिदरतुल मुंतहा का सिदरा, सूरतुल नज्म में मज़कूर जन्नतुल मावा का सिदरा, सूरतुल वाक़िया में बयान होने वाला दाएं बाजू वालों की जन्नत का सिदरा और सूरतुस सबा का मारिब के ज़बरदस्त सैलाब से बच जाने वाला सिदरा ही वो दरख्त था जो दुनिया का हसीन तरीन दरख्त है, जिसको आजकल अरबी में अल-अर्ज़ कहते हैं। आइए ज़रा सा उस मकाम पर गौर करें कि जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफ़ा मिला, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराजुल मोमिनीन कहा है, और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत का हदिया मिला, जिसकी फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस हैं। इन आयत की तिलावत और तर्जुमा सुन लें और इनकी तफसील खुद पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। पहली आयत में ईमान का मुफस्सल और मुकम्मल बयान है। तर्जुमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान ईमान लाए उस पर जो उसके रब के पास से उस पर नाजिल हुआ। सब ने माना अल्लाह को और उसके फरिश्तों को और उसकी किताबों को और उसके रसूलों को। सब ने ये कहा कि हम उसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते, और सब ने अर्ज़ की
کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اے رب ہمارے تو ہمیں معاف فرما اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کا وعدہ سن لیں، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جو اچھا کمایا اس کا فائدہ ہے اور جو برائی کمائی اس کا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم دعائیں عطا فرمائیں کہ جنہیں سوچ سمجھ کر مانگا جائے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، سارے دکھ بھول جائیں، امید کا دامن کبھی نہ چھوٹے اور دین حق پر گامزن رہنے کی امنگ زندہ رہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے رب ہمارے، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، بے شک کافروں پر ہماری مدد فرما۔ آمین۔ اب دوبارہ توجہ کیجئے تفسیر حقانی کی طرف کہ سدرہ جو جنت الماوا میں ہے وہ کوئی دنیا کا درخت نہیں ہے، بلکہ صوفیہ کرام کے نزدیک سدر روح اعظم سے عبارت ہے۔ مولانا حقانی کے نزدیک یہ درخت تمام ارواح کی جڑ ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر علامہ صاحب کے اس شعر کے پہلے مصرے پر غور کریں کہ شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشو، تم سدرا کے درخت کی ٹہنی ہو، خود کو دنیا کا کوڑا کرکٹ مت بناؤ، یعنی تمہارا وجود اس درخت کی ایک شاخ ہے جو سدرا کے درخت سے جھک کر اس زمین تک آ پہنچی ہے، اور تمہاری روح سدرا کی جڑ میں ہے، یعنی دنیا کے اس چمن میں اپنے روحانی وجود کی جڑ سے تعلق کو مضبوط رکھو اور اپنی شاخ کے جسمانی وجود پر پھل پیدا کرو اور اس دنیا کو اپنی مٹھاس، خوشبو اور چمک سے بھر دو۔ اسی درخت کے بیج اب اس دنیا کے چمن میں کاشت کرو۔ تمہیں اس دنیا میں الارض الرب شجرت اللہ بن کر رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں شاخ کا تعلق درخت کی جڑ سے ختم کر کے اسے مرجھا دو اور اسے دنیا کے چمن کا کوڑا بنا کر ضائع کر دو۔ یہ بہت بڑی اور گہری بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو خود کو ضائع مت کرو۔ منکرے او اگر شدی منکرے خیشتن مشو، اور اگر اس انداز سے بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھو اور اپنے اعمال کا ہر گھڑی جائزہ لیتے رہو، صراط مستقیم پر گامزن رہو اور اپنے کردار سے اپنے رب کی کبریائی ثابت کرتے رہو۔ ہم درختوں کی شاخوں کی کارکردگی سے یہ مشکل نقطہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پودا خود کو اپنی جگہ میں محدود اور مقید نہیں سمجھتا، بلکہ وہ فضاؤں کی وسعت سے خوب واقف ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاخوں سے ہی پھول اور پھل پیدا کرتا ہے، جن میں دیگر فوائد کے علاوہ کثیر تعداد میں بیج ہوتے ہیں۔ وہ درخت ان بیجوں کو ہوا، حشرات، پرندوں اور دیگر مخلوق کے ذریعے بکھیر کر پھیلا دیتا ہے جو زمین میں گر کر دب جاتے ہیں، لیکن وہ بیج زمین میں دب کر بھی اس کے اندھیرے میں سو نہیں جاتے، انہیں ہر وقت اپنی نشو و نما کا ہوش رہتا ہے، اور وہ پہلے اپنی ننھی سی پتیوں سے اپنے خول کو توڑتے ہیں،
फिर धरती का सीना चाक करके अपनी कोम्पल बाहर निकालते हैं और रफ्ता रफ्ता खुद तनावर दरख्त बन जाते हैं। इससे ये सबक सीख लो कि अगर तुम में फलने फूलने की जुर्रत है तो तुम पर ना तो ये ज़मीन तंग हो सकती है और ना ही कोई मजबूरी तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकती है। रुकावटों का मकसद ही उन्हें अबूर करके खुद को मजबूत करना होता है। ऐ खुदा के बंदो, अपने अंदर हौसला और उमंग पैदा करो। खुदा की ज़मीन जितनी कुशादा और वसी है, उतना ही तुम्हारे लिए अमल के और आगे बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हर शाख से ये नुक्ताए पेचीदा है पैदा, पौधों को भी एहसास है पहनाए फिजा का। जुल्मत का दाए खाक पे शाकिर नहीं रहता, हर लहजा है दाने को जुनू नश्व नमा का। फितरत के तकाज़ों पे न कर राहे अमल बंद, मकसूद है कुछ और ही तस्लीम व रज़ा का। जुर्अत हो नमू की तो फिजा तंग नहीं है, ऐ मर्द खुदा मुल्क खुदा तंग नहीं है। देखते रहें इकबाल की आवाज़ आबिद के साथ।